in this auspicious day, we will offer our inner light. With the inner light, we will pray all the gurus, and this is the symbolic representation in which just we are praying to all the gurus. Om Bhadram Karnobhi Shruniyam Devah Bhadram Pasyamakkavijayatraha Sthiriringushtushtuvangsasthanubhi Vyasamadevam Hitam Yadayu. Om Swasti na Indro Vruddha Sravaha Swasti na Pusa Viswavedaha Swasti na Stadikyo Arishtunemi Swasti no Bruhaspati Dadhatu. Om Swasti, Om Swasti, Om Swasti, Om Param Brahman. Om Gurave Namaha, Param Gurave Namaha, Paratpara Gurave Namaha, Parameshti Gurave Namaha, Om Vishwa Gurave Namaha. With deep devotion, we will chant 3 times Om. Ichha kriya tatha jnanam Brahmirundri cha Vaishnavi Tridhamatraha stitahi atra tat param yotihi omiti. Ichha, the power of willing. Kriya, the power of action. Jnana, the power of knowledge. All three is, as well as Brahmi, the creator, Vaishnavi, the maintenance, and Rudra, the destroyer, all established in that supreme light which is Om. So we all will chant and offer the sound of Om to the divine Guru. We seek their blessings to guide us in our spiritual journey, to bless us, to bring peace within, as well as to uplift our consciousness level from lower consciousness level to higher consciousness level, to channelize the pranic energy from Muladhara Chakra to Sahasrara Chakra, and to erase all the dross that has been accumulated from life after life in our chakras, to cleanse us, to bless us, to guide us, to reach the divine abode, to reach the highest goal of life, that is to attain the Satchit Ananda, which is the destination of our this coming to this abode. So in this materialistic world, we will be living in this body, but our mind should be in the soul consciousness level all the time. Always we will be living in the energy, in the realm of energy, and we have to think in that note that we are the Brahman. So just with this divine spiritual knowledge are the Mahavakyas, Aham Brahmasmi, Ayamatma Brahma, Pragyana Brahma, and Tattvamasi. You are that, you are that. Always we will be remembering the Mahavakyas, which has been given by the saints and sages from time immemorial. From generations of gurus, this divine knowledge has been transferred through this Guru Parampara,
which right now also in this Kali Yoga, or in this time also, in the modern world also, this knowledge is applicable to everyone to uplift their soul consciousness level. We all will be praying to the Mahavatar Babaji Maharaj, Lahiri Mahasaya, Paramahansa Yogananda, Sri Yukteswara Giri Maharaj, Paramahansa Hariharananda Giri Maharaj, Swami Premananda Giri Maharaj, Swami Sankarananda Giri Maharaj, Swami Raghavananda Giri Maharaj, and all the gurus of every lineage, as well as the Kriya Yoga masters, all the masters of this universe, we surrender with deep devotion, surrendering our ego with utmost humility. We are offering ourselves before these divine souls and just praying to guide us to see that divine glory within. Everybody, take a long and deep breath. With each inhalation, just seek that you are seeking the blessings and the blessing is flowing through you. Take a long and deep breath. Second time, take a long and deep breath. With utmost devotion, seek the blessing. This Om chanting is not just a chanting, it is a healing process through which our karmic disposition will be erased. Take a long and deep breath. Just close your eyes and visualize the gurus, your inner guru. Let the mantras have a healing effect and may cleanse your karmic disposition. Om Sanno Mitrah Samvarunah Sanno Bhavatariyama Sanno Indro Bruhaspati Sanno Vishnu Rudurkamaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyekhyam Brahmasmi Tvameva Pratyekhyam Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmam Avatu Tadbhaktaram Avatu Avatu Mam Avatu Bhaktaram Avatu Bhaktaram
मौनवाख्या प्रकटित परम ब्रह्म तत्त्वयोवानम् वसिष्ठन्ते वसदृशिगणैरभृतं ब्रह्मनिष्ठे आचार्यन्द्रं करकलितचिन्मुद्रम् आनन्दं रूपम् स्वत्मरामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीढे वटपि चपि समीपे भूमिभागे निसरणम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदाता राम त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवम् जनन मरण दुःखं छिदं दख्यं नमामि चित्रं वटतरुमूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवाः गुरस्तु मौनव्याख्यानं शिष्यस्तु छिन्न संशयः ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगतगुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुः पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मुख्यमूलं गुरुः कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा सखीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवो देव। गुरुर्मध्ये स्थित विश्वमध्ये स्थितः गुरु गुरु विश्वा नमाम्यहं विश्वगुरु नमस्तुभ्यम्। भवसागर तारण कारण है रवि नंदन बंधन खंडन है शरणागत किंकर भीतमने गुरुदेव दया कर दीन जने
हृदि कंदर तामस भास्कर है, तुम्हें विष्णु प्रजापति शंकर है। परम ब्रह्म परात्पर वेद भणे, गुरुदेव दया कर दीन जने। मन बारण शासन अंकुश है, नर तार तरे हरि चाक्षुष है। गुण गान परायण देव गणे, गुरुदेव दया कर दीन जने। कुल कुंडलिनी धूम भंजक है, हृदि ग्रंथि विदारण कारक है। मम मंचल रात्रि दिने, गुरुदेव दया कर दीन जने। रिपुसूदन मंगलदायक है, सुख शांति बरा भयदायक है। त्रयतापहरे तव नाम गुणे, गुरुदेव दया कर दीन जने। अभिमान प्रभाव विमर्दक है, गतिहीन जने तुम्हें रक्षक है। चित संचित वंचित भक्ति धने, गुरुदेव दया कर दीन जने। तव नाम सदा शुभ साधक है, पतिता धम मानव पावक है। महिमा तब गोचर शुद्ध मने, गुरुदेव दया कर दीन जने। जय सद्गुरु ईश्वर प्रापक है, भवरोग विकार विनाशक है। मन जे न रहे तब श्री चरणे, गुरुदेव दया कर दीन जने। गुरुदेव दया कर दीन जने, गुरुदेव दया कर दीन जने। तंत्रम मंत्रम पूजा यज्ञम, ना गुरुरधिकम ना गुरुरधिकम। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, भगवत कृपा ही केवलम। ओम असतुमा सद्गमय, तमसुमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मम अमृतम गमय। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तम्, न्यायेन मार्गेण महीं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम्, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु।
काले वर्षतु पर्जन्यम पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं ख्यवरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अशुभानि निराचष्टे तनुति शुभ संततिम स्मृतिमात्रेण यत्पुष्णा ब्रह्म तन्मंगलम विदुः ओंकारश्च तशब्दश्च द्वाविदौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यक्तो तस्मन्मंगलिका विभो मथः ओम सर्वसं शांति भवतु सर्वसं स्वस्ति भवतु सर्वसं पुण्यं भवतु सर्वसं मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम असतमा सद्गमय तमसुमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मम अमृतं गमय ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हरिओम। सभी परमात्मा स्वरूप सभी को कोटि कोटि नमन और आपके अंदर जो परमात्मा विद्यमान है वो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज एक विशेष पर्व है और एक विशेष दिन है जिसमें कि हम उस दिव्य गुरु परंपरा को स्मरण करते हैं और उस दिव्य ज्ञान को जो कि हमें अंधकार से आलोक की तरफ ले जाता है, हमारा चेतना का ऊर्ध्वगमन करवाता है, उस पवित्र दिन गुरु पूर्णिमा में हम पुनः सभी नारायण के चरण कमल में कोटि कोटि नमन करते हैं। और ये बोध जो कि इस गुरु परंपरा के माध्यम से आया हुआ है, पहले शायद ये बोध नहीं था और ये बोध आने में भी समय लगता है, लेकिन सच्चिदानंद स्वरूप सभी आत्मा में उस परमात्मा तत्व को देखने की जो हिम्मत चाहिए वो सिर्फ ही दिव्य ज्ञान आधारण करने से, सिर्फ श्रवण मनन और निधिध्यासन करने से ही प्राप्ति होता है। जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा है जिसको कि व्यास पूर्णिमा बोला जाता है। इस व्यास पूर्णिमा में व्यासदेव का आज आप बार्थ एनिवर्सरी बोल सकते हैं। इस व्यासदेव का जो वचन है, उन्होंने जो इतने सारे किताब लिखने के बाद एक ही श्लोक में समापन किए थे कि अष्टादेशु पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। हमारा सारे धर्म का सार निचोड़ इसमें है, इसी एक ही तत्व में। और इस तत्व को धारण करने से आप के अंदर दया करुणा स्वतः उत्पन्न होता है। आप ये हृदयंगम होता है कि यह संसार में आपके अंदर से जो चेतना, जो भाव बाहर को आप छोड़ेंगे वही भाव प्रतिध्वनित होता है, क्योंकि सारे धर्म ग्रंथ का यही एक ही तत्व है कि हम कर्म से बंधे हुए हैं। हम जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल प्राप्ति होगा। और इस कर्म के चक्कर से कैसे छुटकारा पाया जाए, इस तत्व को हम गुरु लोगों से सीखते हैं। और गुरु लोगों का वचन हमें, जैसे कि हम आज याद आता है वो दिन जबकि मैं ऋषिकेश में था, एक संत के पास गए हुए थे कुछ आशीर्वाद वचन के लिए। उन्होंने बूढ़े हो गए थे लेकिन बहुत जोर से उल्लासित होके कि कोई उनके पास कोई आया हुआ है आशीर्वाद वचन के लिए, इस बात से भी खुशी थे और उनका जीवन का निचोड़ बोलने में भी उनको बहुत आनंदित लग रहा था। उन्होंने
बहुत हंस हंस के बोले, असतमा सद्गमय, तमसुमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम अमृतम गमय। और मेरे को बोले कि यही तीनों वाक्य में ही हमारा सारा धर्म, सारा मेरा जो शिक्षा है इसी तीन वाक्य में ही है। और इस गुरु परंपरा में भी वही शब्द है गुरु। गुरु तत्व वही है जो कि आपको अंधकार से आलोक की तरफ निकालता है। गु है अंधकार, हमारे अंदर जो अज्ञानता है, और जो आलोक, जो गुरु वही होता है जो उस अंधकार से आलोक की तरफ आपको ले लेता है। और हमारा ये भी मानना है कि जो अंधकार रूपी शिष्य आप ही के अंदर है, और जो आलोक को लेने वाला गुरु भी आपके अंदर ही है। लेकिन हम बहिर्जगत में गुरु का आश्रय लेते हैं, क्योंकि जब तक बहिर्जगत का गुरु का यही एक ही लक्ष्य रहता है कि कब मेरा शिष्य समझ जाए कि वही परमात्मा तत्व, वही गुरु तत्व उसके अंदर ही है, और वो कब उस भगवत तत्व को समझ पाता है, कब वो स्व सहज भाव से जो उसका स्वभाव है उसको समझ पाता है, और कब वो अपने को पहचान सकता है। और गुरु का इंटायर यही रहता है कि कब शिष्य इस जगत का जो गूढ़ रहस्य है, इस जीव का जो सच्चिदानंद रूप है, उसको कब समझ सके। क्योंकि हमारा यही मानना है, क्योंकि जो उस परम तत्व जो कि आपके अंदर है उसको जान जाता है, वो जगत का सारे रहस्य को जान जाता है। लॉ ऑफ इम्परमानेंस को वो भले भांति पढ़ लेता है। इस जगत परिवर्तनशील है, इसमें कुछ भी रहेगा नहीं। जो हमारा मन में एक वासना है कि हम ऐसे ही रहेंगे हर समय पे, हर परिस्थिति पे, वो वासना टूट ही जाता है। और हर समय पे उसका मन में एक ही भाव रहता है कि ये जगत है परिवर्तनशील, और यही मुहूर्त, यही जीवन। और जैसे कि हम सुनते हैं कभी कभी किसी से कि यही समय सही समय, और निर्धारित आपके जीवन में भी यही जो हमारा मेडिटेशन में भी दिया जाता है, पहले शिक्षा कि बी इन द मोमेंट, आपको इसी मुहूर्त में ही रहना है। तो ये जब शिक्षा हम पा लेते हैं, तब हमारा जीवन में आनंद, हम इसी मुहूर्त में रह के सो आनंदे आनंदित हो जाते हैं। और मन इसी भाव से रहता है कि परमात्मा जैसे कराए मैं वैसे करूंगा, क्योंकि गीता का टोटल सार होता है कि समर्पण। और समर्पण तब हो सकता है जब आप कर्ता के अधीन नहीं होते हैं, सिर्फ कर्म करने की प्रवृत्ति हो, और कर्म भगवान जो कर रहे हैं निर्दिष्ट कर्म वो आप कर रहे हैं, लेकिन कर्ता भाव को छोड़ देना है। कर्म जारी रखना है और कर्ता भाव को छोड़ देना है। और कर्ता भाव को छोड़े बिना निमित्त मात्रम भव सभ्य सची, ये जो महावाक्य है, इसको उपलब्धि होना, आपके जीवन में समाना बहुत कठिन हो जाता है। और मनुष्य दुख का कारण यही है कि कर्ता भाव, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, हर कर्म में खुद को जोड़ देता है। हर कर्म में एक जो भगवान का जो रूल है उसको वायोलेशन करता है, खुद को इसके अंदर इंसर्ट करके। और जब इंसान सीख जाता है गुरु लोगों से कि हमारा क्रियायोग का पहला प्रियम्बुल वही है कि क्री, you are doing all the actions throughout the day and night, that is called Kri. And see the doer which is doing the work through you. You are just a tool in his hand. आप जस्ट एक निमित्त मात्र है। आपको वो जैसे नचा रहा है आप वैसे ही नचा रहे हैं, नच रहे हैं। आप इसको ये मान लीजिए, आप एक खूंटी है, वो खूंटी के अंदर जब कोई एक साट लेके डाल दे, या एक चड्डी डाल दे, या एक बनियान डाल दे, वो खूंटी को लेना देना क्या है। खूंटी के ऊपर आप जो भी टंगा दे, वो खूंटी कभी बोलता नहीं कि मेरे को मत टंगाओ। ये जैसे खूंटी अपने ऊपर हर चीज को ले लेता है, इसी तरह आप भी, आपके ऊपर जो भी कर्म आता है आप उसको जस्ट साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से करते जाइए। 100% इन्वॉल्वमेंट इन एवरी वर्क। हम जो कर रहे हैं उसी में संपूर्णता के साथ, बिकॉज ध्यान वही है। जैसे कि
हम बार बार सुनते हैं कि ध्यान ये अर्थ है कि आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, उसी कर्म में इतना सजगता से, इतना कंप्लीटली आप उसमें इन्वॉल्व हो जाइए कि जगत जैसे, जैसे कि आप इवन भी घास भी काट रहे हैं, घास नहीं काटने से जैसे कि जगत अस्तित्व टूट ही जाएगा, ऐसा बोध से आप काटिए। आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, उसी कर्म जैसे वो कर्म नहीं करने से अस्तित्व छिन्न भिन्न हो जाएगा, उसी भाव से कीजिए। और वही ध्यान ही बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोग एक ध्यान मुद्रा में बैठ के चोख बंद कर देने से हो गया ध्यान, वो नहीं है। ध्यान वो स्थिति है जहां पे कि संपूर्णता के साथ चित्त, मन और सभी के साथ हम उसी में एक कोई भी कर्म में समर्पित हो जाते हैं, वही हमारा ध्यान अवस्था हो जाता है। सो हम कभी कभी ये सुनते हैं कि मनोएव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षे हो, यही मन ही बंधन का कारण है और यही मन ही मुक्ति का कारण है। आप भले ही हम मंदिर जाते हैं, कभी कभी मंदिर में हम स्वतः शरीर को लेके तो पहुंच जाता है, लेकिन मन भटकता ही रहता है बहुत सारे मंदिरों में। जब आपका मन और तन दोनों एक ही साथ में नहीं रहता है, तब आप में उसमें उस कुछ आपको फलप्रद नहीं हो सकता है। इसलिए आप शरीर को तो बहुत कुछ करवा सकते हैं, लेकिन मन की क्या करें, और मन को कंट्रोल कैसे किया जाता है? जैसे कि हम बारंबार पढ़ते हैं कि अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य ये स्थिति है जहां पे कि आप जान जाते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन दैट विल हैपन, एंड व्हाट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट विल नेवर हैपन, यू ट्राई एज यू मच। तब वैराग्य आ ही जाता है, हमारा मोह भंग हो जाता है। क्योंकि जब समझ जाते हैं कि सारे चीज परिवर्तनशील है, कोई भी चीज रहेगा नहीं, हमारा कोई नहीं है, हमारा सिर्फ यही परमात्मा तत्व ही हमारा साथ है, और कब प्राण चला जाएगा पता नहीं, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हो सकता है अगले दिन हम रहे या ना रहे। जीवन क्षण भंगुर है, इसको रोम रोम में आपको ये ज्ञान को ले लेना है कि जीवन समय कम है, इस समय में मेरे को क्या करना है इस जीवन में, ताकि अंत काल में मेरे को पछतावा ना हो। हम बहुत सारे कर्म करते हैं, धन के उपार्जन करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, लेकिन उसमें कभी हमें तृप्ति नहीं आता है। आप लेकिन उस प्रवृत्ति से खुद को निकालना बहुत कष्ट हो जाता है। जो भी कर्म हम करते ही रहते हैं दिन भर में, कभी एनालिसिस नहीं करते हैं कि ये करने योग्य है या नहीं है, लेकिन उसमें लगे ही रहते हैं। लेकिन कर्म के साथ कुछ दोष नहीं है, भगवान जो हमें करवाए वो हम कर लेंगे, हमें सिर्फ कर्ता भाव को छोड़ना है। धन कमाने, वो धन कमाए या कुछ भी कर्म करे, वो दैट इज इमेटेरियल, एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग दैट इज लिस्ट इंपॉर्टेंट। आप ध्यान कर रहे हैं कि घास काट रहे हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कोई भी कर्म में आप लिप्त रहिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका मनोस्थिति आपका निर्धारित करता है आपका जीवन का अंतिम, जो आपका कार्मिक डिस्पोजिशन, आपका इंटेंशन डिफाइन करता है, आपका मनोस्थिति डिफाइन करता है, और आपका कर्ता भाव जो छोड़ देता है, वो एग्जैक्टली इस कर्म बंधन से छुटकारा पा जाता है। इसलिए परमात्मा के पास, हम गुरु परंपरा के पास यही प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें इस जो गहन जीवन दुखमय है, इस दुख से परम तत्व को प्राप्ति करने के लिए जो ध्यान का मार्ग है, जो भी मार्ग है, सारे मार्ग एग्जैक्टली सही है, कोई भी मार्ग असत्य नहीं है। क्योंकि जब पहला कदम एक जो भी स्पिरिचुअल एस्पिरेंट होते हैं, मैं रिलीजियस वर्ड नहीं लिया, स्पिरिचुअल एस्पिरेंट लिया, क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, एंड एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते
पहला हमारा जो हम बारंबार सुनते ही आते हैं कि एकम सत्य विप्रहा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है लेकिन उसको भिन्न भिन्न रूप पे दर्शाया गया है। जब ये तत्व हमारे अंदर समाहित हो जाता है तब हम, मनुष्य क्या करता है, वो आध्यात्मिक जगत का वो बन जाता है यात्री, वो रिलीजियस पर्सन नहीं रहता है। वो भले ही एग्जैक्टली एक गुरुद्वारा के सामने हो, एक मंदिर के सामने हो, एक मस्जिद के सामने हो, उसका नतमस्तक हो जाता है। वो वही परम तत्व, वही प्रभु को वो साक्षात कहीं पे भी वो दर्शन कर सकता है। उसके लिए हर हर मनुष्य का वो नारायण रूपी वो समझ लेता है और उसको चरण वंदना करके वो समझ लेता है कि मैं नारायण का ही पूजा कर लिया। ये बोध जागृत कीजिए, आपके अंदर दया करुणा भाव को सजग कीजिए, क्योंकि कलयुग है ये। यहाँ से हम जीवन का लक्ष्य को पहले ही समझ नहीं पाते हैं कि पैदा तो हुए हैं, किस लिए पैदा हुए हैं। कर्म करते ही जाते हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं। भगवान इसलिए बारंबार बारंबार बोल रहे हैं, कस्ते कांता कहते पुत्र संसारयम् अतीव विचित्र, कस्य त्वं कः कुतायातः तत्त्वं चिन्तय तदह्य भ्रातः, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये संसार अतीव विचित्र है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो और कहाँ जाना है, ये थोड़ा सा तो चिंतन कर लो। ये सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ कंटेम्पलेशन आपको उस दशा तक ले जाएगा, उस मनोदशा तक ले जाएगा जहां पे कि वैराग्य का उत्पन्न होगा, जहां पे कि आप चरम सत्य के साथ आपको एकीकार कर पाएंगे। आपका जीवन में जीवन का लक्ष्य निर्धारित आप कर पाएंगे और सिर्फ भोजन और संसार में बच्चों को पालना ये सिर्फ आपका कर्म नहीं रहेगा। ये सिर्फ कर्तव्य कर्म आप करते ही रहेंगे। हम कर्तव्य कर्म करने के लिए हम नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन कर्तव्य कर्म करते हुए आप अंतिम लक्ष्य जो है उसको कम से कम आप निर्धारित कर लेंगे और आपका जो चेतना वो इतना विक्षिप्त नहीं होगा। जब कभी लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, जब लक्ष्य निर्धारित होने के साथ साथ ही आपके मन में जो भावनाएं हैं वो चेतना ऑटोमेटिकली एग्जैक्टली एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है जो कि आपका पथ को सुगम कर लेता है और आपका जीवन शैली ही अंदर से ही बदल जाता है। आप वही जगत से वही कर्म करते हुए भी आप निष्पाप और आप कंप्लीटली एक डिफरेंट हो जाते हैं अंदर से। आप उस कर्ता भाव को पहले छोड़ना बहुत जरूरी है। हमारा जैसे कि क्रिया योग परंपरा में, गुरु परंपरा में पहला मंत्र बोला जाता है, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तपः, आपको लॉन्ग ब्रेथ लेना है, लंबा सांस लेना है। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, स्व अध्याय स्वाध्याय, आपको जीवन में जो भी आपका बेसिक प्रोपेंसिटीज है उसको एनालाइज करना है। आपके अंदर जो भी मन में विकार उत्पन्न होता है उसको जानना है और आप जब उसको जान जाएंगे उससे मुक्ति पा ही जाएंगे। बिकॉज यहाँ पे रूल होता है नोइंग इज इरेजिंग। आप जब आपके मन में कोई भी भावना उठता है उसको अगर आप कंप्लीटली पढ़ लीजिएगा, जान लीजिएगा, आप उससे मुक्ति पा जाइएगा। सो यहाँ पे स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेल्फ आइसोलेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आप हर समय पे, इंसान सबके अंदर रहना पसंद करता है लेकिन उसके अंदर कभी कभी अगर आप थोड़ा समय दिन में हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, एकांत में रहना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि यही एकांत में ही आपके अंदर एक जागरण होने का
आपके अंदर वही सेल्फ एनालिसिस करने के लिए बा मेडिटेटिव माइंडसेट क्रिएट करने के लिए आपको ये सही भी सिद्ध होगा। देन ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर ईकारे प्रविशन्ति स्वकारे धारयन्ति एंड रकारे बहिर्याति। ईश्वर आपका जो ब्रीदिंग साइकिल चल रहा है वही ईश्वर, वही ही गोविंद। हम बोलते हैं गोविंद भज, तो वही गोविंद को आप भज, गोविंद। हर समय पे आपका जो अजपा जप चल रहा है, हकारण बहिर्याति सकारण विसत्पुनः, हंस हंस इति अमु मंत्रम जीवो जपति सर्वदा, षट्शतानि दिवारात्रो सहस्राणि एकविंशति, एतत् संख्यानवितम मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। अजपा नाम गायत्री योगिनां मुख्यतः सदा। थ्रू आउट द डे एंड नाइट 21,400 टाइम्स एग्जैक्टली आपका चल रहा है ब्रीदिंग साइकिल। बट द मोर यू विल नो योर ब्रेथ, जस्ट नो दैट यू आर ब्रीदिंग, हर सांस को जानना है। तो ये अजप जब चल रहा है, उसी के माध्यम से प्राणवायु आपके अंदर आ रहा है, भगवान उसी के माध्यम से आपके अंदर आ रहे हैं। और उस प्राणवायु को, प्राण शक्ति के साथ आपका अक्वेंटेंसी बढ़ाना पड़ेगा। हर समय तो आपका ब्रीदिंग साइकिल ऑटोमेटिकली चलता है, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको खुद को सांस लेना है। ब्रीथ योर सेल्फ। दैट्स वाई एग्जैक्टली हमारा शिक्षा में बोला जाता है ब्रेथ कंट्रोल इज सेल्फ कंट्रोल, ब्रेथ मास्टरी इज सेल्फ मास्टरी, एंड ब्रेथलेसनेस इज डेथलेसनेस। जो हमारा डिविजिव माइंडसेट है, जैसे कि हम बोले कि एग्जैक्टली एक मीन्स ये एक हम दिल्ली में जब थे एग्जैक्टली एक चर्च के पास लिखा हुआ था, वहां पे लिखा हुआ था ऊपर द गेटवे टू हेवन। तो मन में मीन्स बारंबार क्वेश्चन आता था कि ये गेटवे टू द हेवन ऊपर बहुत बड़ा करके लिखा हुआ था। तो फिर हम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कभी एग्जैक्टली उसके पास चले गए, और वहां पे नीचे एक साइड में लिखा हुआ था, इफ यू हैव डन एनफ सिन देन यू कैन एंटर टू दिस प्लेस। सो ये भी और भी विचित्र था कि हम अगर संपूर्ण रूप से जितने भी सारे पाप कर्म अगर कर लिए हो तो आप उसके अंदर जा सकते हैं। और विडंबना ही था कि मैं समझ ही नहीं पाया उस समय पे उस चीज को, क्योंकि मन, इसको समझना भी थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि हम तभी उसी चीज से मुक्ति पा जाते हैं जब उस चीज को पूर्णता से भोग कर लेते हैं। ये एक सरल सूत्र में बाद में समझ में आया, जैसे कि हम शास्त्र में पढ़ते हैं, तेन त्यक्तव तो भुंजिता। मीन्स आप उसी चीज से मुक्ति पा सकते हैं जिसको कि आप कंप्लीटली भोग कर सकते हैं, और जो भोग नहीं किया हुआ है वो त्याग कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन ये चीज समझना थोड़ा सा जटिल हो जाता था पहले, लेकिन आध्यात्मिक जीवन जीने के बाद तभी समझ में आया कि भोग नहीं किए हो तो एग्जैक्टली आप त्याग करने का सामर्थ्य नहीं रख पाइएगा। इसलिए भोगी मत बनिए, बट भोग करके उसको मीन्स उसके ऊपर आप चले जाइए। आप अगर कोई भी चीज को कभी टेस्ट नहीं किए हुए हैं, शराब मैंने कभी टेस्ट किया ही नहीं है, तो शराब क्या है जाना नहीं है। शराब टेस्ट कीजिए और उसके ऊर्ध्व से वो खराब लगा तो उसको छोड़ के आप उसके ऊपर चले जाइए, नहीं तो वो जो आकांक्षा आपको खींचता ही रहेगा। इसलिए हम त्याग करने से पहले भोग शब्द को आपको जानना पड़ेगा, और उसको जब आप जान लीजिएगा, कोई भी चीज को जान लेने से ही मुक्ति हो जाता है, क्योंकि बिना जाने आपको उस चीज से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह हमारा निमित्त मात्रम भव्य भव सभ्य साची, जहां पे शुरू किए थे, हमारा जीवन ऐसा हो कि बस हम निमित्त मात्र खुद को जाने, और भाग दौड़ी हम तो मीन्स उसके हाथ में ही सारे लिखा हुआ है, विधाता जैसे लिखा हुआ है हमारा कर्म वैसे ही करते जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे हैं जिनका के जीवन में बहुत सारे कष्ट है, लेकिन ये कष्ट
भगवान देता है सेल्फ क्लींजिंग के लिए। कष्ट अगर जीवन में नहीं है, आप परमात्मा तत्व की सोचना, अगर कोई खुशी में है, आनंद में है, उसको ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान आत्मा को शुद्ध करने के लिए आपके जीवन में कष्ट दिए हुए हैं। इसको आप पाथे, जैसे कि भगवान यही तेरा प्रसाद है, क्योंकि वही प्रसाद से हम जीवन का जो जीवन दुख है पहले जानते हैं, और उस दुख से छुटकारा पाने का प्रयत्न भी करते हैं, और जीव उसी से मुक्ति पा सकता है। जहां पे कि उस मीन्स पहले एग्जैक्टली द डिजायर फॉर सॉल्वेशन। मेरे को एक गुरु जी बोला करते थे, वेदर यू वांट इट और नॉट। सभी तो बोलते हैं एग्जैक्टली मुख्य मुख्य मुख्य, बट आप किसी को पूछिए कि डू यू नीड दिस, और डू यू वांट टू बी वांट सॉल्वेशन और नॉट। एग्जैक्टली पहला ये क्वेश्चन आता है कि हमें चाहिए या नहीं। अगर हमें चाहिए तो उसके लिए मार्ग प्रशस्त है, और मार्ग हमें सुनिश्चित मिल ही जाएगा। इसलिए पहला क्वेश्चन आता है, भगवान अगर आपको दुख दिए हुए हैं, ये एक हमारे लिए आत्म मंथन तथा सेल्फ क्लीनिंग के लिए सहयोग होता है। इसलिए परमात्मा का पाथे है या समझ के आप इसको, कष्ट होता है मानने में, बट ये सुखी की बात है, खुशी की बात है कि इस जन्म मृत्यु का चक्कर में हम कौन सा जन्म में कुछ किए हुए हैं, जो कि संचित कर्म था वो कम से कम क्षय तो हो जा रहा है। और आप ये भी निश्चिंत रहिए कि हम बार बार यही बोला करते हैं कि एग्जैक्टली सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा। द लॉ ऑफ इम्परमानेंस, कोई भी चीज स्थायित्व नहीं है, ये समय भी बदल जाएगा। भगवान को जब बोला गया था कि एग्जैक्टली एक वॉल पे एक लिख लीजिए जो कि हर समय पे हमारा काम में आएगा, जनमानस का, उन्होंने लिखे थे कि ये समय भी बदल जाएगा। तो ये मन में रखिए सुदृढ़ भाव से, ये समय भी बदल जाएगा। अच्छा समय भी बदल जाएगा, बुरा समय भी बदल जाएगा। इसलिए अच्छा समय में अच्छे कर्म कर लीजिए। अगर आपके पास संपत्ति है उसी को सदुपयोग कर लीजिए। अगर क्या पता एग्जैक्टली कल भगवान कौन सा समय दिखा दे। इसलिए हर समय पे प्रयत्न रखिए, भगवान तो जैसा करे मैं सो राजी। एक संपूर्णता के साथ आप सरेंडर हो जाइए, और हर कर्म को 100% डेडिकेशन के साथ कीजिए, जैसे कि वो कर्म नहीं करने से इस अस्तित्व टूट ही जाएगा, वही भाव से कीजिए। और तब आप कर्म बंधन से कर्ता भाव छोड़ के आप मुक्ति पा सकते हैं। इस जीवन मरण चक्र से आपको मुक्ति पाने का एक सरल उपाय यही है कि कर्ता भाव को त्याग करना है। और कर्तव्य त्याग करना इतना आसान नहीं है जब तक आपका चित्त समर्पित नहीं हुआ है। आप जब तक एग्जैक्टली उस स्पिरिचुअल नॉलेज, उस ज्ञान का अधिकारी नहीं हुए हैं, तब तक एग्जैक्टली मैं करता ही रहिएगा। ये मैं और मेरा चक्कर में जीवन को गवाते रहिएगा। इसलिए ये मैं और मेरा चक्कर से, इस शरीर बोध से मुक्ति पाने के लिए ध्यान एक बहुत अच्छा क्रिया योग तथा ध्यान की परंपरा जो है वो बहुत ही एक अच्छा पद्धति है, जहाँ पे कि आप शरीर बोध से खुद को अलग करने का जो प्रक्रिया है आप उसको जान सकते हैं, उसको उपलब्धि कर सकते हैं। हम अंत में थोड़ा सा हमारा जो कुछ मीन्स, हम जब पहले आध्यात्मिक जीवन में आए हुए थे, हमारा एक गुरुदेव एग्जैक्टली हमें ऋषिकेश में एक सिखाए थे, उसको हम आपको थोड़ा सा सुना देते हैं। उसके बाद गुरु स्तुति करके हम आज का ये जो गुरु पर्व का, गुरु परंपरा जो हमारा महान परंपरा है, यहाँ पे सभी गुरु को हम स्मरण करते हैं। हमारा क्रिया योग का परंपरा में बाबा जी महाराज, लाहिरी महाशय, परमहंस योगानंद, श्री युक्तेश्वर गिरी महाराज, परमहंस हरिहरानंद गिरी महाराज, स्वामी प्रेमानंद गिरी महाराज,
स्वामी शंकरानंद गिरी महाराज, स्वामी राघवानंद गिरी महाराज, ध्यानानंद बाबा तथा जितने भी सारे गुरु परंपराएं हैं तथा जितने भी सारे क्रिया योगा मास्टर्स है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उनका चरण कमल में कोटि कोटि नमन करते हैं। उनका आशीर्वाद भी क्या करते हैं कि हमें ध्यान मार्ग में हम जब ध्यान करते हैं, हमें हमारा अंतकरण में विराजमान होके हमें इस पथ में चलने का प्रेरणा तथा हमें वो शक्ति दे ताकि हम इस पथ से हम विचलित ना हो। हम यही हर समय पे हमारा यही मंत्र हो कि इस जीवन से कैसे मुक्ति पाया जाए, इस कुछ नहीं हो तो शांति में कैसे रहा जाए, और हमारा मानसिक बा इन थॉट वर्ड्स एंड डीड्स हम ऐसा कोई भी कर्म ना करे जिससे किसी को भी दुख मिले। एटलीस्ट खुशी तो नहीं दे सकते हैं, अगर खुशी नहीं भी दे सकते हैं तो एटलीस्ट हमारा कर्म मानसिक हो, थॉट वर्ड्स और डीड्स, ये तीनों में हम किसी का भी दुख ना पहुंचाए। ये आपको बारंबार एग्जैक्टली इस मंत्र को आपको हर दिन पे हर समय पे आपको मन में ये रहना चाहिए, दिस शुड बी प्रेम्बल ऑफ ए स्पिरिचुअल एस्पिरेंट। हम जो सीखे हुए थे पहले उसको तो आप लोगों को सुनाते हैं, आप लोग उसमें से थोड़ा बहुत शिक्षा ले पाइएगा। ये धर्म के बारे में है, क्योंकि हम बारंबार बोले हैं कि धर्म आपको जो धारण किया हुआ है वही धर्म है, और धर्म एक है, धर्म सनातन है, धर्म प्राचीन है। धर्म मनुष्यता बोध को आपके अंदर जागृत करता है, और आप वही एक ही परमात्मा जहां पे भी देखिएगा वही एक ही परमात्मा तत्व आपको दिखाई पड़े, आपके अंदर भेदभाव मिट जाए, आपके अंदर जाति पात सारे मिट जाए, यही धार्मिक व्यक्ति का एक निशानी होता है। वो एक वो जानता है कि उसके लिए एक ही रिलीजन है और प्रेम ही रिलीजन है, वो सबको प्रेम बांटता ही रहता है, और प्रेम बांटने से खुद के अंदर प्रेम बढ़ता है और आपको प्रेम मिलता भी है। क्योंकि हमारा बेसिक जो डिजायर है, ह्यूमन बीइंग का बेसिक डिजायर है कि उसको कोई प्रेम करे, और वो सिर्फ तभी संभव है जब आप दूसरों को प्रेम देने का अधिकारी होते हैं। ये प्रेम एक शाश्वत प्रेम है, नथिंग एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न। हम सिर्फ देने में ही हमारा मन हो, और प्रेम देने में कुछ लगता भी नहीं। प्रेम देने में करुणा का भाव, आपके अंदर एक भाव का होना जरूरी है, और भाव की यही है कि यहाँ बैठे बैठे सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही भाव हो कि सभी का मंगल हो, और यही भाव हो, यही भाव अगर आपके अंदर जागृत होता है तब करुणा का उदय होता है, और आप खुद पवित्रवान होते हैं और खुद को सुखी करवाते हैं। तो इसी जो ये प्रेमबल के साथ salutations and prostrations unto thee, thou art omnipotent, omnipresent, omniscient, thou art Satchidananda, thou art the endeavor of all beings. Grant us an understanding heart, equal vision, balanced mind, faith, devotion, and wisdom. Grant us the inner spiritual strength to resist temptations and to control our mind. Free us from egoism, lust, greed, hatred, anger, jealousy. Fill our heart with divine virtues. Let us behold thee in all these names and forms. Let us serve thee in all these names and forms. Let's ever sing thy glory. Let's abide in thee forever and ever. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasisyate. Om Santi Santi Santi. पुनः